Assalamualaikum guys, this is Mohammed Haris from Telecom Department to Form 21 Section 21 TE37. Today I'm going to perform my lab task and lab manual of analyzing discrete time linear time invariant system. For this lab task, first I have performed in my MATLAB codes, and then after that I have created an AI video. So moving forward to the AI video, that will help you to understand what is analyzing discrete time linear time invariant, and after that we are going to perform the codes. Thank you. Ever wonder about the magic behind the seamless transmission and reception of signals in our digital world? That magic is the result of discrete time linear time invariant systems, also known as DT-LTI systems. Today, we dive into this fascinating topic. Discrete time linear time. Invariant systems are special. They follow two primary properties, linearity and time invariance. The linearity property implies that the system's response to a sum of inputs is the sum of responses to each input. The time invariance property means the system's response doesn't change over time. Output? Think of it like this. Suppose you have a magic box. This box follows the rules of linearity and time invariance. If you put in an apple today, you'll get out apple juice. If you put in an apple tomorrow, you'll still get apple juice. The box's response making apple juice doesn't change over time. That's time invariance. Now let's say you put in an apple and a banana. You'll get out apple juice and banana juice. If you put in 2 apples and a banana, you'll get out 2 servings of apple juice and 1 serving of banana juice. The response is proportional to the input. That's linearity. But how does this apply to signals in the digital world? Well, the signals we transmit and receive can be considered as inputs and outputs. The systems we use to process these signals are our magic boxes, our DT-LTI systems. Analyzing these systems can be tricky, but thanks to the Fourier transform and the Z-transform, we can convert complex time domain signals into a frequency domain representation. This conversion makes it easier to understand and analyze the behavior of these systems. To summarize, discrete time linear time invariant systems are the backbone of digital signal processing. They follow two key properties, linearity and time invariance. Understanding these systems allows us to make sense of the complex digital world around us. Remember the magic box analogy? It's a simplified way of understanding these complex systems, and the Fourier transform and Z-transform are our tools to dissect and understand these systems better. So next time you're streaming your favorite show or making a call, remember the magic of DT-LTI systems. It's these systems that make our digital world possible. Thank you for tuning in, and until next time, keep questioning, keep learning. Hello guys, welcome after watching the video. I hope you have understood the analyzing a discrete time linear time invariant. Now moving forward to the lab task. First of all, we're given the lab objective. The objective of this lab is to analyze discrete time linear time invariant systems, LTI systems in short. थ्योरी और इसमें हमें थ्योरी एक्सप्लेन की गई है कि रिस्पांस ऑफ एन एलटीआई सिस्टम. अब हमें गिवन इम्पल्स एक गिवन है एच ऑफ एन एन इनपुट हम उसको देते हैं एन. तो आउटपुट ऑफ द वाई ऑफ एन जो होगी ना एलटीआई सिस्टम की वो कन्वोल्यूशन सम होता है. कन्वोल्यूशन जैसे कि आपको पता है कि दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब कि हम उनको समेशन डालकर दो चीज़ों को, दो इनपुट्स और आउटपुट्स को आपस में इनपुट्स को और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके, तो यह हमारा आउटपुट आ रही है. अब इसमें मैटलैब फंक्शन कन्वोल्यूशन करेंगे हम. अब इसे आप देख सकते हैं दो सिग्नल्स हैं, तो इनकी जो आउटपुट है वो आपके सामने आ गई है. अब आप देख सकते हैं कि हमारा कन्वोल्यूशन करके हमारा ये आंसर आया. तो उसको मूविंग फॉरवर्ड जो इन टू सीक्वेंस को डू नॉट बिगिन एट देन इज इक्वल तो होता है एन बाई एच होता है वो एन एक्स पी प्लस एन आई पी, और ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हुए हमारे पास आ जाते हैं जो ऊपर हमारे पास आउटपुट गिवन है. तो अगला हमारा जो थ्योरी ये थी, अब हमारा लेफ्ट टास्क ये है कि हमसे पूछा गया हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिग्नल एंड अ सिस्टम, एक्सप्लेनिंग द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग. तो इस टास्क को मैंने अपनी वर्ड फाइल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसको मैं जूम इन कर लेता हूँ. ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि पहले हमने डिफरेंशिएट करना है सिग्नल्स और सिस्टम है. डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ सिग्नल एंड अ सिस्टम इज फंडामेंटल इन द realm of signal processing. Here are the key characteristics of each of examples and illustrate of each. Definition first of all, a signal is a physical quantity that varies with time, space, or any other independent variable. In signal processing, it represents the information that needs to be processed, analyzed, or transmitted. Key characteristics इसमें जो होते हैं टाइम स्पेस वेरिएशन, रिप्रेजेंटेशन जो होती है सिग्नल्स एंड वेरियस डोमेन्स होती है, जिसमें टाइम डोमेन होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है, और एक स्पेटियल स्पेशियल डोमेन भी कहलाती है. और इसमें डिफरेंट टाइप्स होती है. सिग्नल्स का कैरेक्टराइज्ड एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होता है, डिस्क्रीट टाइम होता है, एक कंटीन्यूअस स्पेस सिग्नल्स होते हैं, और या तो फिर डिस्क्रीट स्पेस सिग्नल होते हैं जो हमारे पास जेड होता है हमारा, जो उसमें हम 3D मॉडल लेते हैं उसमें हमारा एक्स वाई और जेड होता है. जेड हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इसके बाद एग्जांपल्स एंड डिफरेंट सिग्नल्स की, जिसमें होता है एक ऑडियो वेव फॉर्म आप कह सकते हैं, डिजिटल इमेज कह सकते हैं. अब आप स्टॉक मार्केट या फिर आप जो क्रिप्टोकरेंसी के जो हमारे होते हैं सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसको हम वो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं कि क्या हमारा सिग्नल्स अभी हाई पे है या लो पे है. इसके बाद हमारा सिस्टम होता है. सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम इज अ मैथमेटिकल फिजिकल एंटिटी दैट ऑपरेट्स ऑन सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल इन द रिस्पांस ऑफ एन इनपुट सिग्नल. अब उसमें ये होता है कि दो सिस्टम्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट, और उसके रिस्पांस में रिलेशनशिप में हमारे पास एक हमें रिजल्ट मिलता है. इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें जिस तरह इनवेरियंस, कैजुअलिटी, स्टेबिलिटी, लीनियर टाइम इनवेरियंस, इस तरह की. और रिप्रेजेंटेशन जो होती है मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसफर फंक्शन और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होती हैं. अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक लो पास फिल्टर है जो हाई फ्रीक्वेंसी को निकाल देता है, और या तो एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम होता है जो हमारे पास हमारी इमेज हमारे सामने लेकर आता है. तो एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो स्पीड जो होती है मॉडल की, जैसे हमारी ऑटोमेटिक कार्स में वो एक कंट्रोल कर रहा होता है.
ये हमारा टास्क ए था। उसके बाद हम चलते हैं टास्क बी की तरफ। हाउ डज लीनियर टाइम एलटीआई सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सिग्नल प्रोसेसिंग कंसीडरिंग देयर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी एडहेरेंस टू द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो इसका आंसर है रोल ऑफ जो एलटीआई का जो डीएसपी में ये है, विद क्रूशियल ऑन डीएसपी सिग्नल प्रोसेसिंग ड्यू टू द मैथमेटिकल स्टेबिलिटी एडहेरेंस टू द सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी की अगर हम बात करें तो एलटीआई सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे सिग्नल को डिफरेंट इक्वेशंस को हमारे लिए आसान कर देता है सॉल्व करने के लिए, और एडहेरेंस टू सुपरपोजिशन की पोजीशन को प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हुए हम एलटीआई सिस्टम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जो एफिशिएंसी होती है वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, कंसीडर डिजिटल ऑडियो इक्वलाइजर व्हिच इज कॉमनली यूज्ड टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द ऑडियो सिग्नल। द इक्वलाइजर consists of the multiple filters, each frequency and gains will selectively boost or attenuate specific frequency bands in the audio signal, demonstrating the role of the LTI system in the DSP. अभी हमारा टास्क बी था। अब टास्क सी की तरफ चलते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सिग्नल डिकम्पोजिशन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द टेक्निक लाइक इंपल्स डिकम्पोजिशन, स्टेप फंक्शन एनालिसिस, इवन और डिकम्पोजिशन एंड फूरियर एनालिसिस। एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड्स कंट्रीब्यूट टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एप्लीकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इनसे पूछा गया था कि कॉमन मेथड्स हमने बताए थे सिग्नल डिकम्पोजिशन के, तो अब हम वो बताते चलते हैं कि उसमें जो सिग्नल डिकम्पोजिशन है वो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिग्नल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। तो उसमें हमारे पास होता है कि इंपल्स डिकम्पोजिशन होती है जिसमें हम उसको स्केल करते हैं इंपल्स पे, जीरो पे, और उसके सिस्टम का आउटपुट देखते हैं। फिर स्टेप फंक्शन एनालिसिस होता है, इवन और डिकम्पोजिशन होती है, और एक फूरियर एनालिसिस होता है जिसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर सीरीज लगा के हम उसमें यूज़ करते हैं। और कन्वोल्यूशन होती है जिसमें आपको मैंने बताया, तो एग्जांपल में जैसे गिवन था कि सम लेते हैं, कन्वोल्यूशन सम जो होता है उसमें यूज़ होता है, और ये हमारा फंडामेंटल टाइप्स और ये सब कुछ था। टास्क डी की तरफ चलते हैं। उसमें हमसे पूछा है कि व्हाट इज कन्वोल्यूशन एंड हाउ डज इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। एक्सप्लेन द फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन, एलैबोरेट ऑन इट्स इंपॉर्टेंस ऑन वेरियस डीएसपी एप्लीकेशंस सच एज फिल्टरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड टाइम एनालिसिस। तो कन्वोल्यूशन के बारे में पूछा गया कि उसकी हमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो कन्वोल्यूशन जो होती है इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, अब उसमें फिल्टरिंग आ जाती है, सिग्नल प्रोसेसिंग आ जाती है, और सिस्टम एनालिसिस आ जाता है। तो कन्वोल्यूशन में ये होता है कि इसमें होता है कि टू सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस अ थर्ड सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स द ओवरलैप ऑफ द फर्स्ट टू सिग्नल एज वन इज रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड अक्रॉस द अदर। मैथमेटिकली कन्वोल्यूशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ कंटीन्यूअस टाइम और सम डिस्क्रीट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन एज वन इज रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड। इंपॉर्टेंस इन डीएसपी एंड इट्स एप्लीकेशन फिल्टरिंग में, सिग्नल प्रोसेसिंग में और सिस्टम एनालिसिस में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें हम एग्जांपल वही ऑडियो हम लेते हैं, उसको कन्वर्शन करके ऐड करके हमारे पास एक सिग्नल आता है जिसमें नॉइज़ वगैरह और हाई फ्रिक्वेंसीज वगैरह को हम निकाल के एक क्लियर हमारे पास आउटपुट आ जाती है। हमारे अब आखिरी टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें टास्क ई में वो हमसे पूछ रहे हैं कि where to correlate two signals, where do we correlate the two signals and what are the key applications or scenarios where signal correlation is crucial in various fields such as communication system। उन्होंने पूछा कि हम correlation या correlate कब करते हैं सिग्नल को, तो इसका जवाब ये है कि signal correlation involves finding the similarity between the two signals or comparing a signal with the reference signals। It finds crucial application various especially in communication system when to correlate signal। अब कब करते हैं, पैटर्न मैचिंग के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए और डिटेक्शन के लिए। तो इन तीन मेथड्स में हम यूज़ करते हैं। तो अभी देख सकते हैं, अभी हमारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने मैटलैब के टास्क की तरफ। हमें पहला मैटलैब टास्क जो हमें गिवन है ये है कि मेक योर ओन कस्टमाइज फंक्शन, एक फंक्शन है खुद बनाना है, तो टू इनपुट्स हमें सिग्नल्स के लिए फ्रॉम यूजर और कन्वोल्यूशन करके सम करके हमें ग्राफ में दिखा दें। तो इसके लिए हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। देख सकते हैं कि इस सिग्नल में हमें फंक्शन गिवन था। सबसे पहले हमने डिफाइन ये कर दिया एक्स और एच जो हमारे दो इनपुट्स थी जिसमें हम दो सिग्नल्स लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हम इसमें कन्वोल्यूशन का फार्मूला परफॉर्म करके, तो इसके बाद हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ और एम्पलीट्यूड हम डिफाइन कर देंगे और सैंपल फंक्शन यूज़ करते हुए हम अब इसमें अपना आंसर्स करेंगे। अब आप इसको मैं स्कोर को करता हूँ। वो मुझसे पूछे एक सिग्नल, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है और मैं एक सिग्नल देता हूँ 1, 2, 3, 6, -1 का। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। अब हमसे कह रहे हैं कि हमें सेकंड एक और सिग्नल दो, तो मैं ये करता हूँ -1, -6, 0.5। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और हम इसको दे देते हैं। अभी हमें कन्वोल्यूशन सम करके हमारे पास अभी आउटपुट आ जाएगी इधर पे में। ये जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि हमने इसको इनपुट सिग्नल दिया था, ये हमारा इनपुट सिग्नल था जो कि हमने उसको गिवन किया था 0, 1, 2 और 3, और ये हमारी इम्पल्स रिस्पांस जिसको जो उसका आया हमारे पास। अब वो ये है कि ये हमारा जब इन दोनों को कन्वोल्यूट किया तो हमारे पास ये हमारा सिग्नल आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो आगे टास्क की तरफ, make your own customized function and mix two input signal from a user and use flip and side method to show convolution sum by a system। ये hint use pause command to stay and see stepwise convolution result। तो अब हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। ये मैंने जनरेट किया था हमारा सेकंड कोड, उसमें देखते हैं सेम मैंने इसी तरह यूज़ किया गया और मैंने इसमें एंड में हमने फॉर लूप लगा के या हमने फ्लिप सिग्नल वगैरह और जिसमें हमने होल्ड वगैरह यूज़ किया गया। तो हम इसको रन करते हैं, हम कोड फिगर ले लेते हैं। ऐसे हमें पहले की तरह ही हमसे सिग्नल मांगेगा, सेम हम सिग्नल उसको प्रोवाइड कर देते हैं, कॉपी करके हमसे सेकंड सिग्नल मांगे, ये भी हमें कॉपी करके उसको प्रोवाइड कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कन्वोल्यूशन सम हमारा ये आ चुका है, जो हमारा टास्क था वो हमारा परफॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टास्क में वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम एक सिग्नल दो गिवन है, सिस्टम में गिवन है, जिसका हमने इनपुट बिल्ट इन यूजिंग डिफाइंड फंक्शन फॉर आर्गुमेंट पास ऑन, इसमें हम इनपुट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन, इम्पल्स रिस्पांस और इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन देंगे। टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन नंबर स्पेसिफिकली हम इसमें गिवन करेंगे, और ये हमारा फंक्शन है। तो लेंथ वगैरह ये फंक्शन उसमें डिज़ाइन करना है और उसका रन करना है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है अपना फंक्शन, एक टास्क हमने डिफाइन यहाँ पे किया है सारा, जो भी गिवन था उसके सब प्लॉट्स वगैरह करके एक्स वाई लेवल हमने करके इनपुट दी है उसमें, और एक और फंक्शन कन्वोल्यूशन के लिए हमने सोल्व किया। बस को रन करके आपको दिखाता हूँ उसके आउटपुट। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनपुट और इम्पल्स रिस्पांस होकर के हमारा ये कन्वोल्यूशन ऑफ सिस्टम एंड इम्पल्स रिस्पांस ये हमारा आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। वो हमसे पूछ वगैरह कि एक इम्पल्स रिस्पांस लेना है एक सिस्टम का, और जो उसकी क्या कहते हैं आउटपुट है वो एक्स जो हमारे पास गिवन है वाई पे, और उसको शिफ्ट करके अब हमारे पास क्या इसका आंसर आता है। तो ये मैंने इसके लिए कोड जनरेट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम वही फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ था उसका भी, और उसमें मैंने इसको शिफ्ट करवा दी। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी, फिगर ले लेते हैं जिसमें हमारी आउटपुट आएगी, इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट आ गई है और शिफ्ट किया है मेरे सिग्नल को, तो सिग्नल हमारा शिफ्ट होकर हमारे पास ये आ चुका है, ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारी थी ये आज की लैब 4। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी, और थैंक यू सो मच।